Hello viewers and my dear friends, I welcome you all. So I am back again with the new remedy Ignitia Amara. It is also a polycrest remedy. So as we have done with the last remedies, वो सभी yielding disposition में थी. Ignitia is also in yielding disposition, a very mild remedy, and whenever these patients come to your clinic, so their reaction is so much calculative and these patients are very dignified. Like last remedy we did was the Staphylococcus aureus, so this remedy is very close to Staphylococcus aureus and almost जो elements जो reason था Staphylococcus aureus में जो causes थे वही कॉजेज आपको इग्निशिया में मिलेंगे, वही एलिमेंट्स ऑलमोस्ट इग्निशिया में मिलेंगे. बोथ आर पोजीशन कंसर्न रेमेडीज एंड दे आर इमेज कॉन्शियस पीपल, बट Ignitia is more towards the morals. Ignitia thinks more about what is right and wrong, and she will always do the right. She will never go for the or she will never took any wrong decision. So जो भी moralistic standards में she will do only that things. So Ignitia Amara was proved by Dr. Hahnemann, our great master, and this remedy is a plant remedy and it is produced by the beans of the flowers, ignatus bean of the plant Ignitia Amara. Sphere of action: this remedy acts well on the spinal cord, medulla oblongata and nervous system. So in pathogenesis it produces acute intense of the nerves. It produces intense acuteness of the nerves, hyperesthesia. So we used to study during our college time, during our graduation period, that Ignitia में हम symptoms पढ़ते थे, laughing from grief and lot of other contradictory symptoms. But that was not the actual face, that was not the actual picture of the Ignitia in the Sora and psychosis. वो हम syphilitic picture पढ़ते थे. तो Ignitia क्यों अपने grief से हंसती है? That comes later on, जब वो syphilitic में जाती है. Initially she is not like that. She is very vivacious. There is lot of desires, art aptitude and intelligent. So Ignitia starting में ऐसी नहीं है जो हम पढ़ते थे अपने college time में. That was a syphilitic picture of the Ignitia. जब Ignitia transform हो जाती है एंड जब कुछ भी उसके पास उम्मीद नहीं होती, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जब वो सिफिलिटिक में जाती है तब वो उसके रिएक्शंस आते हैं, लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स. तो वो बाद में आते हैं. और वो बाद में क्यों आते हैं? वो एलिमेंट्स जो हैं, द कॉज इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक ऑफ स्टेफिस ऑरिया. सो आई विल डिस्कस दिस लेटर ऑन. बट इतनी कंट्रोल रेमेडी, इतनी खुश मिजाज और इतनी मॉरलिस्टिक ग्रेसफुल रेमेडी कैसे इसमें ट्रांसफॉर्म होती है? उसका लॉस जो वो इतना कंट्रोल कर रही है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा. देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल. सो देयर इज नॉट कोऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रेन एंड बॉडी. देन लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, convulsions, spasm, chorea, hysteria, incoordination, involuntary movements. So lot of contradictory symptoms. This comes on later stage in the syphilitic miasm. जब वो syphilitic miasm में जाती है, तो जहाँ वो इतनी controlled है, वो control जब खो जाता है, when there is loss of control, then she transfers into this phase. So the temperament of Ignitia is very sensitive, easily excited and nervous. Sora is in the background. So I will give you just a small hint that can help in your clinical practice. That this patient, when comes to your clinic, तो physically when you will notice them, they are generally emaciated and thin, and इमोशनल फेस दिखेगा इनका, लॉन्ग इमोशनल एंड sharp features, because they are very sensitive and very emotional, sentimental people. So the that emotionality, that sensitivity you will notice in their features also. So sharp and oval फेस मिलेगा, लॉन्ग फेस मिलेगा, इमोशनल सैड टाइप फेस दिखेगा आपको. देन दिस पेशेंट सिट्स इरेक्टली.
सो जो कंट्रोल है वो उनके पोस्चर में भी दिखेगा, नॉट ओनली इन द थॉट्स एंड on the reactions but also in the posture also. So they will sit erect. So whatever you will ask, their answers will be in calculative way and very refined way. कुछ ज़्यादा नहीं होगा, they will not speak so much, so the reaction will be very controlled and a very graceful aura you will see in them. So well behaved, well mannered, all their actions are controlled, smile is controlled, even the laughter is controlled, speech is controlled, words they use are within the moralistic standard. So लाइक स्टेफिसेग्रिया वी डिड इन द लास्ट वीडियो, तो जैसे स्टेफिसेग्रिया है एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी देखते हैं हम, वो ग्रीट करेगा अच्छे से, आपको रिस्पेक्ट देगा, वो भी माइल्ड एंड इल्टिंग डिस्पोजिशन में है. तो लाइक दैट इग्निशिया इज ऑल्सो, बट इग्निशिया विल सिट इरेक्ट. स्टेफिसेग्रिया कैन शो लिटिल हॉटीनेस ऑल्सो इन देयर पोस्चर, कभी ऐसे हो जाएगा कभी ऐसे. इग्निशिया विल सिट इरेक्ट. What this shows that she doesn't need any support, she is an independent lady. That person could be man or female, but I'm just giving the example of a female patient कि वो sits erect का क्या वो show कर रही है कि she doesn't need anything, she know what is good and what is bad, and she will do the good part, and she don't need anyone, and she can handle all the things independently, and she is a very control and moralistic lady. So that you will notice in her posture also. So first we will start the journey of the ignitia. जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो ये बच्चे कैसे होते हैं? They are very vivacious kids. So ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों की तरह ये भी मौज मस्ती करते हैं, हंगामा करते हैं, मजे करते हैं. सो इग्निशिया चिल्ड्रंस आर वेरी प्लेफुल, दे लाइक टू प्ले एंड दे आर वेरी वाइवेशियस एंड देर आर लॉट ऑफ डिजायर्स टू डू थिंग्स कि ये भी करना वो भी करना, बहुत थॉट्स आते हैं इनके माइंड में. बट दे आर मोरलिस्टिक, दे नो कि क्या गलत है क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए. दे विल नॉट ट्रबल देयर पेरेंट्स. सो वेन एवर एनी पेरेंट्स कम ऑफ लाइक इग्निशिया पेशेंट है आपका कोई बच्चा, तो जस्ट कंफर्म बाय आस्किंग द पेशेंट की आस्किंग द पेशेंट पेरेंट्स की कभी आपको परेशान करता है, आपको फिक्र होती है, तो पेरेंट्स विल से नो हमें इतनी ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं होती, ये समझदारी अपने आप हैंडल कर लेता है. तो यू कैन थिंक ऑफ इग्निशिया बिकॉज इग्निशिया चिल्ड्रन नेवर ट्रबल देयर पेरेंट्स. दे नो व्हाट दे आर ड्यूटीज, दे आर डिलीजेंट एंड कंसेंशियस. So they are refined, they are diligent and consent. Diligent is what? कि पूरी कोशिश करते हैं, उनका होमवर्क है, उनका कुछ काम है, वो खुद ही निपटाएंगे, इंडिपेंडेंटली निपटाएंगे किसी के सपोर्ट के बिना. सो दे विल नॉट ट्रबल देयर पेरेंट्स मच. उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है, जैसे अगर इग्निशिया की मदर है वो पहले से जैसे जो भी समझा रही है कि बेटा आपको ये नहीं करना, आपको अपनी चीजें संभाल के रखनी है, तो दैट चाइल्ड विल वैल्यू ईच एंड एवरीथिंग एंड विल टेक केयर ऑफ हर थिंग्स लाइक पेन, कॉपीज, टॉयज, and she will cooperate with her mother also. So many ignitia childrens, they do their studies at time and they will complete all their work. Beside that they will cooperate their parents in their household duties also, because they know their duties, their work, and they are moralistic children. So बहुत ही समझदार बच्चे मिलेंगे, प्रीकॉशियस बच्चे होंगे ये. तो इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है. दे आर वेरी क्विक एंड वेरी अलर्ट, दे आर वेरी क्विक टू एक्ट. सो अगर कुछ भी रूटीन से हटके हो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ द मदर इज नॉट फीलिंग वेल, देन the ignitia child will quickly observe that today something fishy, my mother is not looking good. Then she will ask her mother ki what happened, why are you are looking a little tired, do you need anything, should I bring for you, should I make tea for you, or should I bring water for you. तो इस तरीके से वो कॉपरेट करते हैं, केयर करते हैं, उन्हें पता है कि ये सही है, हमें सही करना है, हमें टेक केयर करनी है. तो they are responsible children and precautious children, they know their responsibility. So
They are affectionate also, affectionate, sentimental, yielding disposition and mild. And it moralistic remedy है, तो बचपन से ही क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो रही है तो बच्चे समझदार हो रहे हैं, हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हर चीज अपने पेरेंट्स के ध्यान से सुनते हैं. दे लिसन ईच एंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली एंड पूरा कंसंट्रेशन से, कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं, तो वो सुनेंगे, समझेंगे और मिस्टेक दोबारा ना हो. तो दैट्स हाउ दे बिकम फास्टिडियस. जैसे मैम ने अगर बोला या मदर ने बोला कि आपको लाइन के बाहर कलर नहीं निकालना, आपको लाइन के बाहर नहीं लिखना, आपको हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, या आपको टाइम से होमवर्क करना है, तो यू नो दे विल retain all these things in their mind, they will observe and they will not repeat their mistakes. So that's how they will become fastidious, because Ignitia is moralistic remedy. She know कि क्या गलत है क्या सही है और उसे सही करना है. सही गलत का जो मायना है ना, that is very important for Ignitia, क्योंकि वो हमेशा सही करना चाहती है. Not like carcinosin. Carcinosin जो है it is in the pleasing desire. Carcinosin need what? Carcinosin is yearning for love. She is not getting that love. We have done the carcinosin, so please watch my carcinosin video. So carcinosin में क्या है? Carcinosin is yearning for love. She feels she is rejected, she is not getting that attention and love. That's why she is striving and yearning for love. And इसलिए वो pleasing desire में चली जाती, सब लोगों को खुश करने में चली जाती. तो उसमें अगर कुछ गलत भी हो रहा होगा बट वो नहीं बोलेगी, because she is doormat. So doormat is what? Doormat जो है वो कोई भी यूज करके चला जाता है, बट doormat never retaliate. So that's like the patient of carcinosin. They cannot say no. So cannot say no में भी स्टेफिसेग्रिया एंड कार्सिनोसिन है रूब्रिक में. cannot say no to anyone. So carcinosin will keep obeying because to gain the attention, because she feels she is getting rejected, and तो वो pleasing desire में है. Then she will become fastidious to please others, कि कोई काम में कमी ना निकाले. तो ऐसे बच्चे जो अपनी जगह, जो सामान अपनी जगह पे नहीं रख रहे, बट कोई गेस्ट आ रहा है, कोई टीचर आ रहा है, तो फटाक से जाके रख देंगे दिखाने के लिए कि हमने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, टू शो, टू प्लीज अदर्स. सो दिस इज कार्सिनोसिन. बट इग्निशिया दिखाएगा नहीं किसी को. इग्निशिया को पता है क्या सही है क्या गलत है. लाइक दैट पल्सेटिला. पल्सेटिला भी इज वेरी ग्रीडी रेमेडी, absorbs affection. उसमें only pulsatilla. So she wants lot of love from everyone. तो उसके लिए वो manipulative भी हो जाएगी and she employs every means. तो वो सही गलत नहीं देखती, उसको बस प्यार पाना है, तो वो मैनिपुलेट होके कुछ भी करेगी. बट इग्निशिया इज मोरलिस्टिक रेमेडी, तो वो सही करेगी. उसके लिए सही करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है. सही रास्ता चूज करना, सही काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो क्लैरिटी ऑफ माइंड. सो इग्निशिया के बच्चों को पता है, वो स्टार्टिंग से उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है उन्हें पता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना. तो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, फुल ऑफ डिजायर्स है, रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस. जैसे अगर कुछ भी उनके आसपास हो रहा है ना, तो वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, एंड क्विक टू एक्ट है, अलर्ट है, और आसपास के जो भी कुछ हो रहा है उसका उन पे इफेक्ट पड़ता है. दे आर इम्प्रेशनेबल, सेंसिटिव टू. सो अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई एनिमल को इंजर हो गया, कुछ हो गया, तो वो सिंपैथी में है, बिनोवेलेंस में. बिनोवेलेंस इज व्हाट? दूसरों के लिए सोचना, इंसानियत रखना, दूसरों के लिए कुछ करना. दयालु जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं, दिल खोल के कुछ करना चाहते हैं. सो इग्निशिया इज इन बेनोवेलेंस. सो इसलिए सोशल वर्क फॉर सोसाइटी में भी इग्निशिया है. लेटर ऑन she will do for the society also. So she will not सहेगी नहीं वो कार्सिनोसिन की तरह. इग्निशिया इज इन डिफायंट मीन्स रेजिस्ट करना. कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना. तो कैन नॉट स्टैंड फॉर इनजस्टिस लाइक स्टेफिसेग्रिया. बट स्टेफिसेग्रिया इज नॉट रिवोल्यूशनरी नहीं, एनार्किस्ट है, वहां तक रहेगा. बट इग्निशिया जो है, शी हैज दैट
power, that courage. She is audacious. Audacious means fearless. तो उसको जो सही लगेगा वो करेगी, उसको जो सही लगेगा वो बोलेगी, बट कंट्रोल्ड. रिएक्शन विल बी इन कंट्रोल्ड. ग्रेस बना के हमेशा रखेगी ये. तो ग्रेसफुल रेमेडी है एंड डिलीजेंट है, कंसेंशियस है. कंसेंशियस मीन्स एक हमारा जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमें सही गलत का बताता है. हमारी आत्मा हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है. तो जो इग्निशिया है, शी विल ऑलवेज डू द राइट थिंग्स. फियरलेस, ऑडिशियस, देन सोशल वर्क फॉर सोसाइटी. कुछ गलत हो रहा है, जैसे अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है या कुछ वायलेंस हो रहा है, तो शी विल स्टैंड फॉर दैट. देन आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, शी इज क्रिएटिव ऑल्सो. आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड भी है. सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट भी है. तो वो बच्चे देखो, आप जो रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन स्कोर कर रहे हैं, दे आर पोजीशन कंसर्न एंड दे नो दैट शी शुड डू दिस, शी शुड लर्न दिस, एंड उन्हें अपनी इमेज बनाती है. सो आई विल टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ माई पेशेंट. आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज कि मैं उसको इग्निशिया दूँ या नेट्राम्यूर, बिकॉज her personality and whole case was resembling like much of Netramure. Sensitivity भी थी, but she had all complaints with her from father side. Her father is not too much taking care of her, so all the things are done by her mother. Her mother is doing each and everything. She's taking care of her, she's taking care of her studies also. So she is very depressed from her father's side. But I asked her that why shouldn't you cry in front of your father and just talk to him. Then she replied, I never cried in front of my father. I crave for the love, that warmth from my father, and I never get this feelings from my father. He never concentrates on me, he never asks me, and he always keep comparing me with the cousins. So she was very disheartened. So I asked her that why shouldn't you clear this all things with your father and talk to him and just give him a hug and cry in front of him. Then she replied, I cannot cry in front of him. I cry always when I'm alone, and he never do right with my mother. He abuses my mother, he shouts on my mother, and he never play the part, the responsibility. He never took any responsibility. So she oftenly speaks for her mother and fights for her mother in front of his father. बट रिएक्शन में क्या होता है, उसके जो फादर होते हैं वो बोल के चले जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो शी क्राइज इन द रूम अलोन. तो ये मैंने चीज देखी कि अगर पल्सिटिला होती देन शी शुड हैव स्टार्टेड द टेंट्रम्स एंड द मैनिपुलेशन, हाउ टू फादर को कैसे अट्रैक्ट करना है, रोना है, कैसे प्यार लेना है. तो पल्सिटिला वुड हैव स्टार्टेड दिस ऑल थिंग्स. देन नेट्राम्यूर मेरे को ऐसे कंफर्म हुआ दैट हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट हर in front of her to me, that she is not eating well and she is getting emaciated and very thin day by day, and her menses also had not started, and her friends also make fun, and she should have eat, she should obey me, and she know how the things are for me, very difficult to manage all the things, and there is no cooperation from her father's side. So she was complaining of her in front of her to me like that. Then I watched her face. She was very upset and the anger was shown on her face. So मुझे लग रहा था कि next time she won't come to my clinic अगर नेट्राम्यूर होगी तो, because she will not face me, because this was also very beside the father part. उसके लिए ये भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके अभी तक मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए थे, and this is the period, this is the stage, especially the age of 12 to 30
years to the 18 and 20 years, जब every girl wants to look pretty, and अभी उसके सब classmates के मीनार start हो गया and she is 13 and not yet started, and beside this she is also tensed regarding her looks, that she is very thin and emaciated, तो उसको वो भी थोड़ा embarrassment feeling होती है. तो she was telling me yes I feel means, तो मुझे लग रहा था कि as her mother is revealing all the things and complaining about her, her mother also said that she shouted on me and abused me, that she should know that how I am going from that difficult part, there is no cooperation from father side, that she should understand. So एक दिन वो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और उसका गुस्सा उसकी मदर पे निकल गया था, तो वो सब उसकी मदर वॉज टेलिंग दिस ऑल थिंग्स टू मी. तो मुझे लग रहा था उसको अच्छा नहीं लग रहा. बट नेक्स्ट टाइम शी केम टू माई क्लिनिक एंड आई कन्फर्म दिस थिंग्स फ्रॉम हर मदर, कि जाने के बाद में उसने कुछ झगड़ा किया, उसने कुछ बोला कि वाई यू रिवील्ड ऑल दिस थिंग्स टू मेघा आंटी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. तो then I prescribed her Ignitia because she fight for her mother. She took the step to cooperate or to stand for her mother. तो अपने लिए नहीं बोला उसने अपने फादर से, उसको प्यार नहीं मिल रहा फादर से, she should have manipulated to gain the love, बट वो सही के लिए खड़ी हो रही है, वो अपनी मदर के लिए बोलती है अपने फादर से कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अकेले में जाके रोती है. तो then I prescribed her Ignitia. She had a problem of backache, and after medicine her backache also vanished and her menarche also started, and now she is fine. I gave Ignitia 200 thrice for 3 days. Then afterwards she is fine now. तो ऐसे आपको प्रोब करना है केस के अंदर, बिकॉज नेट्राम्योर, इग्निशिया, स्टेफिसेग्रिया, दिस ऑल आर वेरी क्लोज रेमेडीज, सो वी गेट कंफ्यूज्ड. अनदर केस इज ऑफ अ टीनेजर गर्ल. वो बचपन से ही बहुत ऑडिशियस है, वो उसने अपने पेरेंट्स को पूरा कन्विंस कर रखा है, एंड शी इज द रैंकर of the class, and she stood in the university also topper, so university topper भी रही, and her parents say that they never had any problem from her side, and उसको जब भी वो कुछ मांगती तो उसके पेरेंट्स पूरी कर देते हैं बात, बिकॉज देयर पेरेंट्स सेड दैट वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन अवर चाइल्ड. इंस्टेड जो उसका एल्डर ब्रदर है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो इन दैट केस ऑल्सो आई गेव हर इग्निशिया, क्योंकि एल्डर ब्रदर जो है वो बड़ा होने के बावजूद भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है पेरेंट्स का, बट ये यंगर है, अभी यूनिवर्सिटी टॉप की है, और उसके पहले भी शी हैड पिकनिक्स आउटसाइड द सिटी, एंड जब भी वो कुछ मांगती तो उसके पेरेंट्स मना नहीं करते. दे हैव फुल फेथ ऑन हर. तो ऐसे जो इग्निशिया के जो बच्चे हैं वो ना फुल कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि आप देखो अगर कोई बच्चा है जो बात मान रहा है, कभी गिर नहीं रहा, संभल के चल रहा है, किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं जा रहा, सबसे अच्छे से बात कर रहा है, सबको ग्रीट कर रहा है, अपना होमवर्क टाइम से कर रहा है, टाइम से खेल रहा है, अपनी हर एक ड्यूटी कर रहा है, तो कभी पेरेंट्स को कभी मौका ही नहीं दे रहा शिकायत का, तो पेरेंट्स का भी फेथ डेवलप हो जाता है. तो इस तरीके से ये बच्चे होते हैं. आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है, फिलोसफिकल एबिलिटी. ये भी पेशेंट में थी, जो पेशेंट मैंने आपको बताया जिसकी फादर की तरफ से प्रॉब्लम थी, फादर ध्यान नहीं देते थे उस बच्ची पे एंड मदर पे, एंड रोज घर में प्रॉब्लम्स रहती थी. तो आई आस्क्ड हर कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर रिजल्ट. देन शी सेड दैट आई ऑलवेज स्टूड सेकेंड एंड थर्ड. Then I asked her ki what will be the reaction if you will not in the top 10. Then she said her answer was her reaction was in philosophical ability. She answered me in that way that just assume that glass is half empty, and if we will look the bad part, that it is only half filled, no use, that is the negativity. We should always take it positive side. So I took this rubric also, philosophical ability, and also the rubric hopeful. So this Ignitia people are hopeful. This is a rubric hopeful. Hopeful मतलब जब उम्मीद होती है, जब
पॉजिटिव इज डिफरेंट रूब्रिक, पॉजिटिव, होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये तीनों रूब्रिक डिफरेंट है। ऑप्टिमिस्टिक क्या है, जब 100% श्योरिटी कि ऐसा होगा ही, एंड जो होपफुल है जहाँ पे कि हाँ होगा, अच्छा होगा लग रहा है, जहाँ पे 50-50% है, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, हर चीज को एक पॉजिटिव वे में देखना। तो आई टुक रूब्रिक देयर होपफुल एंड ऑल्सो द फिलोसफिकल एबिलिटी, प्रीकॉशियस, और बाकी सब एनालाइज करके इग्निशिया दिया था। तो हाँ, ट्रैवलिंग डिजायर भी है इसमें, इग्निशिया में ट्रैवलिंग डिजायर, एंजाइटी कंसाइंस। व्हाट इज एंजाइटी कंसाइंस, जब कुछ आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत किया है, तो वो एंजाइटी कि कहीं आपने गलत कर दिया, आपको करेक्ट करना चाहिए, दिस इज। देन फास्टिडियस वी हैव डन, कि कैसे फास्टिडियस होते हैं इग्निशिया के बच्चे, क्योंकि इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसी हो रही है, मदर उनको जो समझा रही है वो ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सही अपने आप को बिल्कुल प्रिसाइसली परफेक्शनिस्ट बन के कि हाँ हमने सही करना है। देन देयर इज रूब्रिक डेल्यूशन हियरिंग सम म्यूजिक, ये इसलिए क्योंकि इग्निशिया के जो बच्चे हैं ना वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। म्यूजिक क्या है, म्यूजिक में वेन एवर वी लिसन एनी म्यूजिक वी आर इन हैप्पी मोड, वी आर वेरी एक जील होता है, एक पॉजिटिव, एक मतलब हमें लगता है अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव होता है, हम थोड़े हाई स्पिरिटेड होते हैं। तो डिल्यूशन हियरिंग म्यूजिक, ये जो इग्निशिया के बच्चे हैं ये बहुत आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, फिलोसफिकल एबिलिटी है, अलर्ट है, क्विक टू एक्ट है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, सो दे आर इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल बच्चे। तो सब जगह से उनको तारीफ मिल रही, दे आर गेटिंग एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, टीचर्स। सो वो एक मोड रहता है ना हैप्पी, हाई स्पिरिटेड, तो उसको लगता है मैं एक म्यूजिक ही सुन रही हूँ, एक क्योंकि सब बढ़िया हो रहा है, हाई स्पिरिटेड है, और उसी फेस में वो सब कुछ एप्रिसिएशन मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया, और उसी फेस में वो काम करती रहती है अपना। सो डिल्यूशन हियरिंग सम म्यूजिक। आई फॉरगेट टू मेंशन, अभी तक तो हमने अच्छा सारा पार्ट देखा। इग्निशिया का बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, अफेक्शनेट है, माइल्ड है, ग्रेसफुल है, एंड दे नेवर ट्रबल देयर पेरेंट्स। बट इग्निशिया में सिबलिंग जेलेसी भी है। मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, मैंने ऐसा देखा नहीं है, बट आई हैव रेड इन द बुक्स कि कभी कोई अगर सिबलिंग होने के बाद में अगर बड़े बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है, अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे पेरेंट्स और छोटे पे ही सारा ध्यान चला गया, उसके बाद में अगर बड़े एल्डर पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिजीज या कुछ भी, तो यू कैन थिंक ऑफ इग्निशिया एंड हायोसाइमस एट दैट टाइम। बट हायोसाइमस जो है ना वो अपने सिबलिंग को, न्यूबॉर्न बेबी को ना इंजर कर सकता है, कुछ हार्म कर सकता है। बट इग्निशिया इज मोरलिस्टिक रेमेडी। सिबलिंग जेलिसी है क्योंकि अभी तक उसको अटेंशन मिल रहा था, अब उसके छोटे भाई या बहन को मिल रहा है, तो सिबलिंग जेलिसी है। बट इग्निशिया इज मोरलिस्टिक, तो वो क्या करेगी, जब पेरेंट्स इधर उधर होंगे तो वो थोड़ा सा क्या न्यूबॉर्न बेबी को थोड़ा परेशान कर देगी, कभी बाल खींचती है, कभी छुट्टी काट दी, कभी थोड़ा हल्का सा चाटा मार दिया, मतलब एट दैट लेवल पे वो इंजर कभी नहीं करेगी अपने भाई या बहन को, बिकॉज शी इज मोरलिस्टिक। सो नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द एलिमेंट्स, कि क्या एलिमेंट्स होते हैं जिस रीजन से इग्निशिया जो इतनी कंट्रोल रेमेडी है उसका कंट्रोल खत्म होने लगता है, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स आते हैं, और क्या एलिमेंट्स हैं, क्या डिल्यूशंस हैं इग्निशिया के, क्या फियर्स हैं। सो वी विल कवर ऑल दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज डू कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई होप you will keep commenting and liking my videos, because this will motivate me to make new videos, and I would like to share such things in my future. So okay, take care.